सो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी हमें फर्स्ट मिली थी महाराष्ट्र बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड से। एक्चुअली बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड में उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि दे वर ट्राइंग टू यूटिलाइज बाम्बू फॉर पर्पस अदर देन artisans and furniture manufacturing. So that time, Mr. TSK Reddy, who was the managing director of that bamboo development board, gave us an opportunity to work with bamboo. And bamboo being a herbaceous crop, when it is termed as biomass, उसका कन्वर्शन अगर हम लोग कार्बन में करते हैं तो बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। बाम्बू का चारकोल या बायोचार या बाम्बू बायोमास का अगर कार्बन में हम लोग कन्वर्शन करते हैं तो द बेनिफिट्स विच वी आर गेटिंग इज कार्बनाइजेशन, जो बाम्बू बायोमास का काफी रैपिडली और अच्छे से होता है। इट्स यील्ड इज क्वाइट हायर। apart from being used as a fuel, it is good adsorbent also, as you all are aware that carbon is being utilized as an basic filtration agent in all water filters and air filters. So carbon अगर हम लोग वहाँ पे रिप्लेस कर पाए from carbon obtained from this biomass, it will be a good alternative. सरफेस एरिया जो हमें बाम्बू कार्बन से मिलता है, इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हाइयर एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन। Apart from that, this particular bamboo charcoal or biomass based charcoal, it can be very efficiently used in fuel, efficiently used as a fuel for power plants, and it can be either co-fired with commercial coal or it can be directly burned as a coal or charcoal in boilers or furnaces. सो द प्रोजेक्ट इट हैज टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक कार्बनाइजेशन टेक्निक डेवलप करना है सो दैट ऑल दीज बाम्बू बायोमास or any other kind of biomass can be efficiently converted into charcoal. And then second objective of the project was developing and installing a carbonization furnace at commercial level. Already our industrial partners, Mr. Anil Chok from Vidarbh Cells and Mr. Yogesh sir from Sanjeevani Agro Industries, उनके साथ में हमने ये फर्नेस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट फैब्रिकेट किया है। एंड वी हैव इंस्टॉल्ड ऑलमोस्ट 2 furnaces at 2 different locations which are having capacity of processing around 1 ton per day of biomass or bamboo biomass into charcoal, and further its pelletization is also carried out. In this project we have almost studied, actually ये data इस topic से relevant नहीं रहेगा, but sticking to the project which we got from bamboo development board, we have studied almost 35 different species of bamboo which were converted efficiently into carbon or charcoal, and further they were utilized as a fuel. These are the properties which were obtained from various species of bamboo which are available all over India, जिसमें if we want to utilize this particular bamboo carbon as an adsorbent, तो iodine value जो एक major property होती है which was obtained for all these 35 species. Apart from that, actually we have calculated the calorific value, the ash content and other properties for bamboo charcoal, and we got very promising result जिसमें हमें bamboo charcoal का जो calorific value है, it was obtained in the range of 4500 calories per gram on an average, which is very good to be used as a fuel, burning fuel. Plus all these biomass has an advantage that their ash value, ash content after combustion is less than 3%. Commercial coal, when we are utilizing commercial coal for burning purpose in boilers or furnaces, actually it generates ash in the range of 5 to 10%. So carbon, it is termed as activated carbon. Activated carbon जो है उसका यूज जो है वो एड्सॉर्प्शन पर्पस के लिए होगा. इट इज डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज, और उसमें अगर उसकी वैल्यूज 500 मिलीग्राम्स पर ग्राम से ऊपर मिलती है देन इट इज टर्म्ड एज एक्टिवेटेड कार्बन. इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इफ वी आर गोइंग फॉर एक्टिवेशन, activation is carried out for all the species of carbon in a single step. Ash content and calorific value, as I mentioned earlier, ash content जो है it is very less for this particular biomass based carbon, less than 3%, and the average calorific value for this biochar or bamboo based charcoal is around 4500 calories per gram.
So in this project, we were actually provided with 35, 36 different species of bamboo, which were efficiently converted into activated charcoal, and further some products, industrial product prototypes were developed, जिसमें air filters, water filters were developed, and some respiratory masks were also tried. But the beauty of this particular project was these smokeless briquettes. Smokeless briquettes were efficiently manufactured from this particular bamboo based biochar, and the beauty of these smokeless briquettes is they burn continuously without generation of smoke and without any odor, and the production cost for this particular briquettes is very less, means hardly per kg. If we want to manufacture these smokeless briquettes from bamboo charcoal, raw material से अगर हम start करेंगे तो from raw material up to smokeless briquette production, hardly 25 rupees a kg is the production cost. This is the second part of our project, in which we actually designed, fabricated, and installed a biomass carbonization furnace having capacity of 1 ton production per day. Sorry, 1 ton processing per day. Means the furnace capacity is feeding capacity is 1 ton, around 1 ton of bamboo or any kind of biomass, and this particular furnace is wood fired furnace. मतलब ये without electricity run होता है, and the syn gas is generated during the carbonization process, and whatever syn gases are generated, they are just washed in these scrubbers, और scrubbers के बाद में run होने wash होने के बाद में these syn gases itself carries out further burning of your bamboo biomass, and you can see actually the bamboo, whole bamboo is converted into biomass, biochar. This is our second furnace, which is installed at Tadoba, in the forest region of Tadoba, and this particular furnace was designed specially on the request of forest department that they didn't want उनको wood fired furnace नहीं चाहिए था, so we modified the design, and the design was actually the furnace was actually running on LPG cylinders. You can see the LPG cylinders were installed, and in the first picture it is very clear that around 1100 kg of bamboo was fed at a time. The complete process cycle was around carbonization process was around 8 to 10 hours, जिसमें आपका सिर्फ बर्निंग होता है, and if we talk about the complete process of carbonization, in a process time of 15 hours आपका feeding, carbonization and cooling to get complete carbon from bamboo biomass, 15 आवर्स में आपको एक 1100 केजी का फर्नेस का कंप्लीट बायोचार मिल जाता है. This is actually a video, working video of this particular charcoal making machine. Somehow it is not running over here. You can see that syn gases are coming out from this particular scrubber, and afterwards they only are recycled back through the scrubber to the bottom of the furnace, making the process very efficient. Means is recycling of this syn gases actually हमारा carbonization process का cost जो है वो काफी कम कर देता है. मीन्स मॉर्निंग में ही मेरी कटारिया जी से बात हो रही थी. कमर्शियल चारकोल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 25 rupees a kg, whereas if we are going to produce this particular carbon from biomass, briquettes भी हमें उसी रेंज में मिल जाएगी, and they are marketable, easily marketable. So this particular furnace was actually installed at पड़सगांव साइट ऑफ ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रीजन. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दिया है. वन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इज देयर, मिस्टर विनेश हालवे. अनदर वन इज आल्सो देयर, एंड द फर्स्ट वन फर्नेस वाज इंस्टॉल्ड एट एमबीडीबी ऑफिस, जो नागपुर में ही काटोल रोड पे लोकेटेड है. The complete design of this particular furnace was designed at LIT, and the furnace was fabricated with the industrial partners, with the help of industrial partners. These are some basic calculations regarding the yield of furnace and its cost, जिसमें actually when bamboo biomass or biomass is burnt in this furnace, 3 different types of products are obtained, जिसमें basically focus किया है carbon production पे. जो morning में query थी कि we are looking for torrefication of biomass. So torrefication is a process where solid biomass can be converted into black carbon
This is the same process. Carbon yield in this particular furnace is around 33%. Vinegar is 1 to 2%. This is the major throughput और major benefit of this process. इसमें vinegar हम लोग separate कर रहे हैं, though it is a side product of this particular process, but if we are going to run or burn biomass pellets directly into the furnace, this vinegar being acidic in nature, वो acidic होता है, it is going to reduce the life of your furnaces. In this particular processes, कार्बनाइजेशन प्रोसेस, हम विनेगर को सेपरेट कर लेते हैं, एंड दिस विनेगर अगेन ये आपको अलग से मार्केट में अराउंड 20 रुपीज 30 रुपीज लीटर का वैल्यू देता है. टार 2 से 3% इसमें टार मिलता है. अगेन दिस टार कैन बी यूटिलाइज्ड एज इन बायो ऑयल फॉर फर्दर गैसिफिकेशन और फ्यूल कंजम्पशन. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ this particular carbon obtained from the carbonization furnace is in the range of 4000 to 5000 calories. These are the commercial aspects. As I said earlier कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो अराउंड 25 to 40 रुपीज अ केजी है कार्बन का वैल्यू, एंड विनेगर इट इज गोइंग टू गिव यू मार्केट वैल्यू ऑफ 20 रुपीज अ लीटर. अमेजोन पे हम लोग चेक कर सकते हैं स्मोकलेस ब्रिकेट और स्मोकलेस चारकोल, इट इज बीइंग सोल्ड एट अराउंड 175 रुपीज अ केजी. द प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे मैंने बोला ओनली 20 रुपीज केजी हमें ये बाम्बू बायोमास से अभी प्रोडक्शन कॉस्ट इसका पड़ता है. प्रॉफिट मार्जिन जो है इफ वी आर गोइंग फॉर वुड फायर्ड फर्नेस, मतलब हमारे पास में अभी फिलहाल 2 फर्नेसेस हमने 2 अलग टाइप के बनाए हैं, जिसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो एलपीजी फायर्ड फर्नेस थोड़ा सा महंगा पड़ता है और अदरवाइज वुड फायर्ड फर्नेस दे आर क्वाइट चीपर. दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट विच was incurred, means around 12 lakhs में हमें 1 टन प्रोसेसिंग कैपेसिटी का फर्नेस इंस्टॉल हुआ है. These are the some benefits और advantages of bamboo biochar. उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है दूसरे बायोमास से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो. प्लस इट हैज एन अदर यूज ऑफ बीइंग यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट, इंडस्ट्रियल एड्सॉर्बेंट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन बाम्बू इज मोर एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लांट. मीन्स CO2 साइकिल की है जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं एंड अर्निंग कार्बन फुटप्रिंट्स और कार्बन क्रेडिट्स, वी कैन प्लांट बाम्बू इन आर premises, harvest it into biomass after 1 or 2 years, carbonize it, use it as a fuel, again we can recycle it. So carbon footprints reduce करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये हमारे पास में अवेलेबल है. Ash generation, it is already less as compared to commercial coal. If it is used as an adsorbent for water filtration purpose, तो कमर्शियल जो वाटर फिल्ट्रेशन पर्पज में कार्बन यूज होता है, इट्स कॉस्ट इज अराउंड 400 रुपीज अ केजी. जो वाटर फिल्ट्रेशन में यूज होता है वही सेम टाइप का कार्बन हमें यहाँ से मिल रहा है. एंड व्हेन वी चेक इट फॉर TDS रिडक्शन ऑफ वाटर, सो 600 ppm का वाटर, इट्स TDS वाज रिड्यूस्ड टू लेस देन 350 ppm. वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में और बाकी आपके कार्बन के जो कुछ भी यूजेस है, इंडस्ट्रियल यूजेस है, इट कैन बी इजीली used as commercial carbon. Ash generation and all these things are already discussed. इसमें एक अच्छी बात है कि recently the government is focusing on use of biomass, more and more biomass for power generation. So this particular technology can prove to be a very good alternative for introduction of biomass for power generation. Okay. Thank you from my side.
उसके बाद में हम लोग लास्ट में कर लेते हैं। अभी हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में किस तरीके से पैलेट बनाने वाली मशीन हम लोग बनाएंगे, तो मशीन पर डिस्कशन करेंगे और मशीन किस तरह से बनता है और किस तरीके से ऑपरेशन होता है, ये तो सभी चीज़ हम लोग करीब करीब समझ गए हैं। लेकिन तो वो मशीन कैसा होता है और किस तरीके से मतलब मशीन अपना वर्क करता है, इसके लिए संजीवनी एग्रो से हमारे योगेश सर आए हुए हैं और योगेश सर इस पर डिस्कशन करेंगे। सर प्लीज़, योगेश सर कम। इस सेशन में टोटली मतलब मशीन किस तरीके से कैसे बनता है और किस तरीके से उसका वर्क है, इस पर हम लोग का डिस्कशन। सर इसको कैसे करेंगे सर? अच्छा इससे करेंगे, ठीक है, इससे करें। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग एवरीबडी, myself Yogesh Gajralwar from Sanjeevani Agro Machinery, Nagpur. We are having a manufacturing unit at MIDC Hingna. We are into manufacturing of various agro-based machinery. Our various machineries like animal feed machine, cattle feed machine, and along with that we are manufacturing biomass pallet machine also. We have started this manufacturing of machine around 5 years back, and now we have all over India customers, right from Jammu Kashmir up to like Punjab, MP, Chhattisgarh, even Calcutta, even Andaman Nicobar, we are supplying the machine. So basically, uh, I'm going to introduce like uh, how to convert biomass into pallet, usable pallet for burning or whatever use they are going to have. As you all are aware, we have a lot of sources of biomass. One, we'll get lot of biomass from forest like bamboo and all. You can get lot of biomass. Agricultural crops, everyone knows that after removing the crops you get lot of residues, which is lot of biomass is available. Even municipal waste, if you go for proper segregation, then you can get a good quantity of biomass out of municipal solid waste also. After that, animal residues, like you get what you call poultry waste. That poultry waste can be like some sort of it can be used. And then lot of industrial residue, like lot of cardboards, this and that's what packing material, which is generally thrown or like given for the, that can be also utilized for biomass, like uh, production. As you know, there is whatever is happening right now for the biomass, there are a lot of issues of burning parali, cotton stock, that is happening after harvesting. Then like small portion can be used in cattle feed sometimes, like some chana and all that waste can be used for the cattle feed. Then for in rural area where there is no LPG, there is no, most of the people are using wood for burning heating. Some people are using it for particle board manufacturing, but that quantity is very low, as you know, like most of the people are going for that other. And then so around 2 years, 2 to 3 years, there are a lot of pallet manufacturer who are like manufacturing the pallets, but still the demand is high and supply is very low, because this is a new concept, new business. And basically palletizing machine is again like you have to search. There are few suppliers, we are few manufacturers who are actually
manufacturing the machineries. Now we will just go for a simple step, like how to make pallet from biomass. We need three types of machineries. First is our we need to crush the biomass. We have to pulverize it and turn it into fine powder. So you can have various capacities of grinder, right from like 100 kg per hour up to 500 kg per hour. That basically this grinder is required. Their capacity can be from like 5 HP, 10 HP up to 20, 30 HP grinder pulverizer required. The second step of this palletization is we need to add a binder. Like for any kind of raw material, different kind of raw binder is required, or you can say whatever binder is available in your region. Like in our area, like we can use that sal doc. Sal doc, we get this powder that we added. We need to add around 20%, 15 to 20% depending on the raw material. You can use molasses. Molasses is not available everywhere, it is costly also, but that can be used. Then groundnut shell. This again, if you have sufficient available in your area, then this can be used as a binder. Then kaju shell, korangi shell, this kind of binders you require to make a pallet. Then like as I told you, 10 to 15% we add to the raw material, and it needs to be homogeneously mixed to make a material ready for the palletization. Then again we need to add moisture for the final stage. We need to add the moisture up to 20%. So this is the second step of palletization. This is a mixer, any kind of mixer. Lot of mixers are available, capacity 100 kg, 200 kg, 500 kg per hour. And like you have geared motor, like lot of options are there available in the market. Then we have currently, as per the capacity, we are with two types of palletization machine available. One is a ring die pallet mill. So for a higher capacity, you need to have this ring die pallet mill. The capacity can range from 1 ton to up to 5 ton per hour, depending on like your raw material and your capacity to invest and all. And we have small flat die pallet mill, which can produce 100 to 1000 kg per hour. So these are for like small farmers, small entrepreneurs. They can set up this type of machinery in their small villages and have an additional income out of the agro waste. So there are two types of machines available. So now this is a ring die type mallet mill. It is a very heavy duty machines. Most of the manufacturer are like in India, there are some manufacturer, or you have to import this machine sometimes. The capacity is very good, and there is a ring type die wherein the biomass is fed from the center, and with the hammer available in the center, it pushes the biomass outside to get the pellets. Like this, you will get the pellets out of it. So its efficiency is very high. You can have addition of moisture and all can be automated. You can have a complete automated system with this machine. And like you can have for commercial use, you need to have this kind of machinery. Like for we have developed this machinery for small entrepreneurs, small businesses who can afford in smaller budget. So this is a flat die type pallet mill, where you have one flat die, and there are two rollers are rotating. This machinery can have a capacity motors from starting from 15 HP up to 30 HP motor, and output capacity of as I told you, 100 to 500 kg per hour. You can get this. There are few what you call consumable parts in this machine. One is like this die, and other is roller only. Otherwise, this is very sturdy machine, and you can like do almost 8 10 hours of the production per day out of this machine. And this is affordable. There are some parts of the machine where they have a control panel, then there is spindle, and you can like this is a manual type. You have to put manually all the material,
and you will get like parts and all. You can make biomass pellets for a lot of raw material out of which you can make. This is a corn straw, wheat straw, then this is raspberry straw, cotton stalk. You can make a good pellet which is having good calorific value. Then this branch, whatever trees. Then sawdust is one of the better option. You get lot of sawdust from this ara machine and all, so that is readily available. They have most of the time they have to throw it or do it some, so that can be used to make a. And then like lot of, but for all the raw material you need to have different kind of what you say additive to make it the pellets feasible. Like now you see the business model uh, for what we, this is I have given for the small machine, that 100 to 500 kg per hour. So that plant and machinery will cost around 20 lakh rupees. Working capital, you need to have that raw material available all the time, so that is working capital. Then cost of raw material, still we have to get raw material is almost free of cost, but still you need to transport it to your place, so that cost I have taken. Then cost of production like electricity, wear and tear of machinery and all, that is around 2. And selling cost, like it depends on the area. Like in Nagpur we have very less value for the like mass pellets. In other area of the India, up to 14 rupees per kg you can sell this product, and profit depends on the selling product, because your manufacturing cost is almost same. So 4 rupees to 10 rupees per kg, 10 is very higher side, but you can like depend on whatever the market available, whatever is the customer available. So if someone, a small person in the village or in even entrepreneur in the city want to start, you can start with this kind of investment. Hardly like 2 manpower will be required, and like up to 30 lakhs you can, he can start his own business of biomass pellets. Now if you like, this is a generalized term, that by utilizing the biomass we can prevent that agro and forest waste burning, arresting firewood, and creating that this will be an additional income for the farmers. If they are like, there is a supply chain available where like biomass manufacturers are there, they can sell their agro waste and earn some additional income. And again it will like prevent pollution in urban areas and even rural areas. We have this other line of machinery, like we are into this cattle feed machines, then this hammer mill, then floating fish feed mill and all. uh, Recently, like we have some valued customer where we have supplied our biomass pellet machine. We have one at MNTPC Mauda, anyone can go and see it. Then one we have recently supplied at Jhajjar, Haryana, APCPL, and again one more at Jarli Parli, Odisha. Then we also have supplied this bamboo development board, Nagpur, where they are like using this out of bamboo waste. There is a lot of bamboo waste available. If you see the currently the major industry that is depend on bamboo is agarbatti making machine. Okay, and many of you may be knowing or may not be knowing, the 80 to 90% is a waste. Only 10% is utilized to make the raw agarbatti. So that 80 to 90% waste can be easily and very successfully utilized to make this biomass pellet. And this waste problem is faced by all the agarbatti industries which are there in like India or wherever. So this is a very good option for agarbatti making units. They can like utilize this waste, bamboo waste, to make this biomass pellet and make good almost at par income with what they are doing for agarbatti. Means because you see 80 to 90% is a waste for this agarbatti industry. So that is a very good option for agarbatti industry. Then like we have supplied some plants to this again bamboo research center, Chandrapur, then Rushi Soya. A lot of, there are a lot many customers, but they are major customers, and still there are a lot of inquiries going on. Okay, thank you very much. If you have any questions.
Okay. एक्चुअली सर दे हैव उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो कॉलोनी है तो कॉलोनी में जो वेस्ट निकलता है तो उसके लिए एक स्मॉल एक क्या बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट करके उन्होंने लिया है क्योंकि वो पावरस के लिए तो इतनी छोटी मशीन से तो कुछ होने नहीं वाला है सो दे हैव वेरेवर दे हैव टेकन ना कि वहाँ उनका जो कॉलोनी वेस्ट या जो पावर स्टेशन का जो वेस्ट निकलता है आफ्टर क्या बोलते हैं मानसून उनको कट करते हैं तो उसको क्या करना है तो इट इज एन पायलट प्रोजेक्ट बट नाउ दे आर ऑल्सो उनका सर वो अप टू 500 kg वाली मशीन है। हाँ यानी छोटी मशीन है। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर रिंग का तो अभी नहीं बना रहे हम अभी हमारा प्लानिंग है लेकिन अभी नहीं बना रहे। हाँ हाँ। नहीं सर अगर जैसे मेरी कोई भी मशीन है तो मैं उसको स्क्रू कन्वेयर सप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे जिसको ऑटोमेशन तो आपका जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें से डायरेक्ट स्क्रू कन्वेयर में आता है वहाँ से डायरेक्ट मिक्सर मिल में जाएंगे तो दैट ऑल सिस्टम विल बी क्लोज इसको अपन भी इसका वो लगा के हो इतना इशू नहीं आएगा तो वो इतना इशू नहीं आएगा और फिर थोड़ा सा अभी प्रिवेंशन के लिए जब अब तो मास्क पहन ही रहे कोरोना के लिए तो उसके लिए थोड़ा मास्क पहन लिए तो अच्छा नहीं तो वही सर वो हाँ नहीं सर यानी वो तो हो सकता है सर क्लोज सिस्टम होता है ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत डस्ट आ रहा है बाहर और बहुत वो ऐसा जरूरी नहीं है यू कैन हैव अ क्लोज सिस्टम आल्सो जैसे अपने ऑटोमेशन किया है प्रॉपरली तो उतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा सर उसमें से हमारा एक बड़ा मॉडल हम अभी प्लान कर रहे हैं चालू है हमारा उसके ऊपर तो वो जाएगा आपको जैसे 40 टन पर डे तक का जा सकता है उसके ऊपर अभी हमारा वर्किंग चालू है फ्लैट डैम है सर यस सर वो अभी हम शायद 1 मंथ में लॉन्च कर देंगे वो मशीन फ्लैट डैम वाला अभी जो कौन सा अभी जो दिखाया हमने वो तो बताएं सर अपना 15 lakhs तक पूरा मशीनरी जाता है सर किस कैपेसिटी की मशीन है ये? सो 1 TPD में 2 मशीन लगाना पड़ेगा आपको तो 2 मशीन में आपको 30 हाँ 40 lakhs में हो जाएगा सर हाँ ऐसा है हाँ हाँ उसका अभी निकालना है सर यस सर हाँ हम्म नहीं सर इंस्टॉलेशन के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है सर कॉस्ट इंस्टॉलेशन के लिए अपने को तो ज़्यादा नॉर्मल अपना जो एक आरसीसी प्लेटफॉर्म लगता है दैट्स ऑल उसका ना तो कुछ नहीं है तो वो सब साथ में ही कोड करते हैं ना सर इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट उसका जो भी कंट्रोल पैनल ये सब तो साथ में ही कोड होता है हाँ हाँ नहीं अब जैसा पावर रिक्वायरमेंट है जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं 40 HP का मशीन तो उसमें आपको अप टू 30 या 25 kW तक का आपको पावर रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो तो अभी यानी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया है सही बात है ये सर क्या कैपेसिटी मशीन की? हाँ उतना नहीं आएगा
हाँ हाँ हाँ, वो तो रहेगा ही सर। इट नेचुरली, अगर आपका हार्ड वुड है या हार्ड वुड है तो उसको थोड़ा सा पैलेटाइजेशन में टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो तो फिर रॉ मटेरियल पूछ के ही बोलना चाहिए, या तो कस्टमर ने भी आपको 10 बार पूछना चाहिए। हाँ। नहीं सर, देखो, जो मटेरियल का मॉइस्चर है ना, जैसे आप पल्वराइज करते हैं उसको, ग्राइंडिंग करते हैं, तो वैसे ही मॉइस्चर उसका कम हो जाता है। और अगेन यू हैव टू मेंटेन सर्टेन मॉइस्चर फॉर पैलेटाइजेशन ऑल्सो। तो जो कैलकुलेशन, हाँ हाँ सर। हम्म। एक्चुअली हम तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं सर। हमारे जितने भी कस्टमर है, हम उनको पहले यहाँ नागपुर बुलाते हैं हमारे फैक्ट्री में। उनको यहाँ 2 दिन रुकाते, उनके सामने पूरा मशीन असेंबलिंग से लेके मेंटेनेंस उनको सिखाते, उनको ट्रेनिंग देते, और उसके बाद बोलते अभी तुम परचेज करो मशीन। विदाउट दैट वी आर डूइंग रिवर्स वे। उनको खुद ही यहाँ बुलाते हैं हम। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। नहीं, बराबर है। तो वो एक तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सर। ये ट्रेनिंग पार्ट सब लोग मिस कर देते हैं कि मशीन भेज दिया हो गया। फिर वो जनरली क्या होता है, आउट स्टेशन में मशीन है तो आदमी जाएगा आएगा उसका टाइम। तो उससे अच्छा वी हैव फाइंड बेटर ऑप्शन कि हम पहले ही कस्टमर को बुला लेते, वी गेट द देम ट्रेन फॉर 2 days एट आवर फैक्ट्री, और देन ओनली वी स्टार्ट द अदर प्रोसेस। चलो अभी आप खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कैसा है, वॉट एवर है। तो वो जनरली हम करते ही है। बराबर। बराबर। नहीं नहीं, नको नको नको। नहीं, अब रॉ मटेरियल तो प्ले करेगा ही सर रोल, जो भी है। मशीनरी तो एक स्टेशनरी आइटम है। नहीं, वो मैं बोला ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ये मशीनरी में। ट्रेनिंग, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके सिवा मशीन बेचना ही यानी बेकार है। ठीक है सर। यस सर, यस सर, जरूर जरूर। चलो। यस सर। बोलिए सर। होता है सर, होता है। हमारी मशीन में तो होता है सर। 8 नहीं 10 घंटा चलेगा सर कंटिन्यूस। उतना वियर एंड टियर रहेगा उतना। नहीं सर, नहीं। यानी हमारे में तो कोई कंप्लेंट नहीं। अभी हम 3-4 साल से बेच रहे हैं, और यहाँ पे ना ऑल ओवर इंडिया हमारी मशीन चल रही है। तो हीट का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्रॉपर ये वगैरह रहा ना, तो नहीं आता है सर प्रॉब्लम। हाँ सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
बाइंडर का कॉस्ट डिपेंड करता है, जैसे आप साल ड्यू से लोगे तो यू विल गेट इट अराउंड 10 रुपीज पर केजी। फिर मोलेसिस है, वो तो पर लीटर के हिसाब से जहाँ जहाँ अवेलेबल है, तो वो एक थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा बाइंडर का एक। एरिया वाइज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा क्या अवेलेबल है, जैसे दिल्ली में कुछ रहेगा, महाराष्ट्र में कुछ रहेगा, तो वो यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट। बाकी मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। एक मैं बोला ना, एक 15 to 20% या 10 to 15% जनरली अपन ऐड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल एंड डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा। हाँ हाँ, मैंने कुछ दिखाया था ना कैलकुलेशन, कन्वर्शन बोले। वो मैंने 2 रुपीज लिया था पर केजी। हाँ, 2 रुपीज पर केजी कन्वर्शन कॉस्ट है आपका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मेंटेनेंस मशीन का वगैरह आ गया, वो हिसाब से। ठीक है सर, चलो। हेलो 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 हेलो, ऑनलाइन किसी को डाउट है कुछ? हेलो हेलो सर, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है? हेलो, ऊपर है। हाँ हाँ, हेलो हेलो, अच्छा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। Okay, participants joined online. If there are any questions, they can ask. ज्वाइन So, participants, any joined in the online mode? I think a lot of people have disconnected because your connectivity disconnected twice. That's why there may be the problem something. नहीं सर, अभी ठीक है। Anyway, no issue, no issue. नो इशू सर, नो इशू। But Prabjot Singh ji available hai. I request him if he can throw some light on this. Prabjot Singh ji. लाइट ऑफ। Yeah, I'm here. I'm Yeah, able to hear you. kindly throw some light on the topic. I hope it was a very successful mission and your efforts are really commendable. So I request you to please address the audience. Uh, so in my opinion, this has been a fruitful session, though the participation has been on the lower side. But I have listened to all the participants, pretty presenters attentively, and we have covered almost all aspects of the biomass value chain. Starting with the ICAR explaining the international scenario, how standards in other countries are being followed, and what is the status of India in that context. Then we also came to know about a case study for a project on cotton stock based pellets which are being manufactured by ICAR, and of course the participation by the online audience has also been there. Albeit despite some glitches, we have been able to interact. And regarding the mission, I think these programs are going to happen continuously over the next months as well. So I request everybody present here to publicize this and tell their friends and everybody, their colleagues, that this mission on use of biomass in thermal power plants, it is now functional. And with the launch of our website and logo, all those formalities, we expect to complete in the coming 1 month. And with that, we are going to provide a platform to all the stakeholders in the entire value chain, be it farmers, be it pellet manufacturers, or equipment manufacturers, or the power utilities, so they can actually interact with each other and find out the solutions. Now we have reached a point wherein we know what are the problems in this entire linkage. The first problem is that of collection and aggregation of raw biomass, and then you know
after collecting the biomass, what is the best way to convert it? What are the best machines available, whether it is ring type machine or flat type machine? What are the best processes? Whether torrefied biomass pellets are more beneficial, more efficient in bringing this entire pollution thing into arresting it, or whether non-torrefied can do the job. And then there are certain regulatory aspects which will come up as this sector matures. So we are taking care of it as well. So we are trying to promote the demand for biomass pellets by using we are promoting RPOs. So in the future, the distribution utilities will be able to fulfill their RPO obligation, which concerns with purchasing a part of their energy from renewable sources. So this biomass pellets co-fired will be considered under the non-solar RPOs. And then there is also an issue of merit order, because biomass electricity is slightly more expensive than coal. So there is an issue raised by power plants that they may get lesser schedule because they are going to get expensive after firing the biomass pellets. So for that purpose, we are making a regulation which will exclude the increase in cost due to biomass co-firing, so that it will not affect the scheduling aspect of power utilities. Now, for pellet manufacturers and to strengthen their linkage with the power utilities, we are also preparing the model contract documents, which will answer so many questions that we have in our mind, that how will we ensure that paddy straw is being utilized, and different biomasses have different GCVs, and then what about the regional differences in characterization? All those issues we are trying to address in formulating the model contract documents. So a lot of work is going on in the mission, and ministry as well as the government of India, they are completely focusing on this issue, because it is like the solution is in front of us, the problem is also in front of us, and there are willing participants as well in this value chain. It is a matter of trust and a little bit of effort and collaboration among the participants. So that is what we are lacking at this point, and this mission sets this target to achieve this goal. And we hope to have more such fruitful interactions in the future, and we are also planning to have a large scale conclave. It will probably be held in Delhi in the coming 1 to 2 months. So all these things are there, and an advertisement campaign wherein hoardings etc. we are planning to put, so that more and more people get to know about this very easy solution and very जिसको कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मतलब ये हमारे सामने है, सभी के सामने है कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बजाय इसके कि हम करोड़ों की पराली को, करोड़ों के बायोमास को जला दें, क्यों ना उससे बिजली पैदा करें। मतलब ये सभी को मालूम है कि ये सॉल्यूशन काम भी करेगा और आगे चल के ये मतलब कॉमन प्लेस हो जाएगा। यानी कि ये आम दिनचर्या का, जैसे कोल से हम बिजली बना रहे हैं वैसे ही बायोमास से भी बनने वाली है। तो जो लोग इसमें लीड लेना चाहते हैं वो ज़रूर आगे आएँ। कोई उनके इश्यूज़ हैं वो मिनिस्ट्री के साथ रेज़ करें। मिशन की ईमेल आईडी आपको पैम्फलेट में दी गई है, आप हमें मेल करें तो आपको ज़रूर उसमें जो है रिस्पांस मिलेगा। तो इस तरीके से हम सभी को मिल के काम करना होगा और ज़रूर ये चीज़, हमारी कोशिशें जो है रंग लाएंगी। शुक्रिया। Yeah, thank you, Prabhjot ji. I think you have given an insight of the functioning of mission, and I hope all the pellet manufacturers, they will be surely get in touch with the mission people and get their things clarified. I think India is moving towards, like morning we have discussed, a low carbon economy and the clean energy transition. In that also biomass itself
in the last G20 meeting, is held recently in October itself. So you might have seen that around 5 lakh renewable energy installation will be there, 5 lakh megawatt capacity by 2030. And if that biomass, even pellet biomass based generation exclusively also, I have seen the reports, we can have around 6% contribution from the biomass itself, besides the your co-firing system, like 5 to 10%, say now 5%, we can go slightly higher than 7% or like that. So hope the future is very bright. And also besides that, we can have a lot of employment generation, because presently we'll see in the last few years, and due to this pandemic also, the employment generation has drastically changed in India. That is also PM also is worried. And the rural employment itself, we can have more than 2,60,000 employment generation because of this biomass. So there is a lot of scope is there. And as you said rightly, cost, I hope that when competition increases and mass awareness increases, cost also will be surely decreased. So that hope for that. And the participants who are there, I hope we can take some feedback. Some time is there. If they can contribute, we can see some participants give the feedback. They can come to the dais, Sanjay ji. They can come one by one and say their feedback so that everybody can listen. Those who are in the online also. जी हाँ सर. Yeah. You can ask them. They can come. 2 minutes only. They can give feedback, because their feedback is more important to us and to the mission itself. चलिए, थैंक यू सर. सर, ये आज का जो सेशन था, अभी सेशन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड जो कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर भी अभी हम लोग क्लियर कर सकते हैं. किसी भी तरह कोई डाउट है, उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सुशील सर हैं, इसके बाद मालवीय सर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि कटारिया जी हैं और योगेश सर हैं. तो इन लोगों से कोई भी किसी भी तरह का कोई हो तो हम लोग पूछ सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो LIT, जो यहाँ पर कॉलेज है, LIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर अमित अग्रवाल जी हैं. अमित अग्रवाल जी को दोनों तरफ से, मतलब कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों इस पर वास्ट नॉलेज है. ये काफ़ी इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और काफ़ी इसमें इनको वास्ट नॉलेज भी है. तो अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो इस डाउट को हम लोग अभी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मुझको लग रहा है कि अमित जी जैसा नॉलेज वाला इस फील्ड में, इस क्लासरूम में जो प्रेजेंट है, इसे हम लोग नॉलेज ले सकते हैं. और सुशील जी भी हैं, जिससे कि बायोमास से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं. मालवीय जी हैं और कटारिया जी हैं. कटारिया जी पैलेट्स के बिल्कुल ही मास्टर आदमी हैं, और इनसे कुछ अगर किसी भी तरह कोई डाउट है तो कर सकते हैं. और अगर किसी भी मशीन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने योगेश जी से, या अनिल जी भी आ गए हैं, अनिल जी से भी हम लोग इस पर बातें कर सकते हैं. तो प्लीज़ अगर कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो उसका हम लोग, कोई क्वेरीज वगैरह है तो उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और इस टाइम को हम लोग यूज कर सकते हैं. तो किसी को भी कोई डाउट हो तो अनिल जी हैं, योगेश जी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं, मतलब मशीन मैन्युफैक्चरिंग से हैं. कटारिया जी हैं जो कि पैलेट मैन्युफैक्चरिंग से हैं, और अग्रवाल जी जो कि हमारे मतलब कि केमिकल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं. और अगर बायोमास, मतलब नेशनल लेवल पर कोई भी किसी भी तरह का डिस्कशन करना है तो उसके लिए सुशील जी हैं और मालवीय जी हैं. तो प्लीज़, और सबसे बड़ी चीज़ कि कॉटन से रिलेटेड और कॉटन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड हमारे यहाँ पर जो सर हैं उनसे भी बातें कर सकते हैं. तो किसी भी तरह का कोई डिस्कशन है तो डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, अभी टाइम है. और प्लीज़ क्वेश्चन के लिए है कोई डाउट तो डाउट हम लोग क्लियर करेंगे. अभी कोई फीडबैक है आप उसको भी दीजिए, फीडबैक बताइए हमको, क्योंकि देखिए अभी जो ये हमारे पास जो सेमिनार हो रहा है, बेसिकली जो नेशनल सेमिनार ये बायोमास पर किया जा रहा है, बेसिकली हमारा क्या प्रॉब्लम आ सकता है और किस तरह का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ही अगर डिस्कस कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम लोग लास्ट में मिल जाएगा. तो सबसे पहले चीज़ इस पर हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है. जैसे कटारिया जी इस पर काफ़ी बता रहे हैं कि कैसा क्या चीज़ हो सकता है. तो हाँ,
सर अच्छा सर से बात कर सकते हैं? हेलो, हाँ ठीक है। हाँ सर। हम एक जो हमारे डेलीगेट है उनको बुला के माइक में बात कर सकते हैं? नहीं सर यहीं फीडबैक पर ले लीजिए, फीडबैक ले लीजिए। आ और जाइए। फीडबैक फॉर्म दिया उनको, फीडबैक फॉर्म में भी ले, feedback- राइटिंग में भी ले लीजिए। वो फीडबैक हाँ फॉर्म है आपके ठीक। पास? हाँ हाँ है सर, है, दे देते हैं। फीडबैक फॉर्म राइटिंग में ले लीजिए, वी कैन आल्सो गो थ्रू दैट। और ठीक अभी है। ओरली भी फीडबैक ले लीजिए। हाँ हाँ ले रहे हैं। And finally, I can also request Arjariya ji to give his most useful feedback also. लाइए सर। ठीक है सर, ठीक है ये लोग कर लेते हाँ हैं। जी, फीडबैक ले लो। और कोई बोलना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। जी उनको हाँ। आप जब माइक में बोल रहे हो ना, उनको वहीं बुला लीजिए। हम्म। एंड दोज आर इंटरेस्टेड, वो आके बात कर लीजिए थोड़ी देर। जो भी वो बोलना चाहेंगे या उनको कुछ डाउट अभी भी क्लियरिंग कर सकते हैं। सर ईशान गोटमारे जी, कोई डाउट है? और नहीं तो फीडबैक कैसे लगा प्रोग्राम, और इसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि दिस इज पहला प्रोग्राम है और मिशन का भी अभी शुरू में काम हो रहा है। तो वी कैन टेक इट वेरी पॉजिटिवली। एंड उनको जो फीडबैक होगा जरूर हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी टेक केयर करेंगे कि और कुछ सब्जेक्ट ऐड करना है और कुछ क्या इन्वॉल्वमेंट किसको रखना है, तो उसके बारे में फीडबैक चाहेंगे उनको बुला लीजिए। हाँ नहीं ईशान जी हैं सर। जी। हेलो। हाँ सर, मैं हरीश अरोरा बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर बोलिए। यस यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर मैं एजीएम पावर प्लांट रिटायर्ड हूँ और 10 साल मेरा एग्रो बेस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जी सर। ये मेरा लक है कि मैं इस फोरम में अभी मैंने 1 घंटा पहले ही ज्वाइन किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगली बार जब आपका कोई ऐसा सिम्पटम होगा तो मैं उसमें ज्वाइन करके अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ ठीक है उसमें, सर। क्योंकि मेरा 10 साल का खुद का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मैं खुद जो है एजीएम पावर प्लांट डीसीएम श्रीराम रेयंस कोटा से रिटायर हुआ हूँ। जी सर। और मेरा थ्रू आउट पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है फ्रॉम सुपरवाइजर टू एजीएम लेवल। जी। तो क्योंकि नीच एक्सपीरियंस है, तो अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी। और एग्रो बेस पे मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और पावर प्लांट का एक्सपीरियंस 37 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है सर, जब नेक्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको जरूर उसमें इनवाइट करेंगे सर। यस सर, श्योर श्योर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर एनी अभी कोई क्वेश्चन वगैरह है सर, कुछ और पूछना चाहते हैं? ऑनलाइन फीडबैक। हेलो सर, किसी भी तरह का कोई सजेशन इस पर? क्योंकि सर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मेरे लिए न्यू है सर। अगर किसी भी तरह का कोई आइडिया, कोई सजेशन या कुछ डेवलपमेंट का आप बता सकते हैं? सर इसमें ऐसा है कि मैंने, क्योंकि अभी जैसे रिटायर हो गया हूँ तो मैं अभी कंसल्टेंसी चालू की हुई है खुद कोई। जी सर। तो अभी मेरे को ऑलरेडी क्यूरीज आनी इंडस्ट्री से चालू हो गई हैं जी। क्योंकि मेरा नीच एक्सपीरियंस 10 इयर्स का एग्रो का भी एडिड है। जी सर। तो अगर किसी को अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। उनको बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे को तो एग्रो में हम 10 साल काम किए, हमारे 3 बॉयलर कन्वर्ट किए थे। जी सर। फ्रॉम कोल फायर्ड बॉयलर टू एग्रो फ्यूल जी कन्वर्ट किए थे। हमारा यहाँ तक हुआ कि हमने पहले तो बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर 30 टन का था, जी 2010 में कन्वर्ट हुआ और मैंने 2011 में ज्वाइन किया। फर्स्ट बॉयलर मेरे सामने कमीशन हो रहा था। जी हाँ सर। और सेकंड बॉयलर 2015 में कमीशन हुआ, मेरे सामने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुआ। जी। और थर्ड बॉयलर हमारा, आप मानेंगे कि AFBC बॉयलर, जी हाँ, जो बॉयलर मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है पर इकोनॉमिकल नहीं था, उसकी वजह से 50% कॉस्ट था एग्रो का। जी तो हाँ। AFBC बॉयलर जो हाईली टेक्निकल एफिशिएंट बॉयलर माना जाता है, उसको इकोनोमाइज की वजह, पावर मतलब कॉस्ट की वजह से AFBC बॉयलर को कन्वर्ट करके ग्रेट स्ट्रोकर फायर्ड बॉयलर जो नॉर्मली एग्रो फ्यूल के लिए यूज होता है उसमें कन्वर्ट किया था हम लोगों ने। जी सर। तो ये 2018-19 में कन्वर्ट किया। तो मेरा रिच एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों में। तो अगर कोई प्रॉब्लम टेक्निकल हेल्प की चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो बेसिकली जो प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बेसिकली ये NTPC के थ्रू किया जा रहा है सर। और ये जो भी आपका मैसेज है ये डायरेक्ट हमारे बायोमास के जो ये मिशन डायरेक्टर हैं यहीं पर है, मेरे साथ ही प्रेजेंट हैं।
सर और मेरा नाम हरीश अरोरा है, तो मैं अवेलेबल हूँ, और मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे मैसेज में डाल रहा हूँ। ठीक है सर, अगर डालिए आप। यस सर। हाँ ठीक है सर। और सर जो भी है आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सॉल्यूशन है, हमारे मिशन डायरेक्टर यहाँ पर इसको नोट कर रहे हैं और इसको आगे की ओर फाइनलाइज करेंगे सर। हाँ, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल बिल्कुल। हूँ। हाँ अगर मैं फोरम किसी भी फोरम में अगर आप बुलाएंगे तो मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपको मतलब इसके लिए अभी मैं अपना अभी मैं एनसीआर भिवाड़ी में बेस्ड हूँ। हाँ हाँ अच्छी बात है सर। और हम लोग आपको इसके प्रोजेक्ट के लिए मेंटर कंसीडर कर रहे हैं, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगा हम आपको कॉल करेंगे सर। हाँ सर, चलिए। मेरा बायोडाटा आप मांग सकते हैं, मैं दे हाँ दूंगा हाँ सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा और इस पर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सर, चलिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू थैंक सर। यू। सर और हाँ मालवीय जी बोलिए। हाँ नीचे से फीडबैक फॉर्म लेकर आ जाइए ना, 10-12 फीडबैक फॉर्म। आइए सर, आइए प्लीज। हाँ सर आप हाँ, नहीं रावत साहब चलेंगे। हाँ सर ठीक। यही कहना चाहूंगा कि जैसे पैलेट कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसमें क्या कॉस्टिंग आनी है, वो हम एज अ बिजनेसमैन, हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, हम लोग के ऊपर ज़्यादा छोड़ दिया जाए। हम लोग मार्केट से जो टेक्नोलॉजी सही है वो उसको अपने आप ही ढूंढ लेंगे। बेसिकली हम यहाँ आने का ये था कि एनटीपीसी के माइंडसेट अभी क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत समय से टेंडर हॉल्ट में है एक तरीके से, जिसमें कुछ आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके रखे थे, और जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स लोग के ऊपर 5% वाला जो नया नियम लाया गया है, पर वो आया है जरूर, उनकी तरफ से कई प्राइवेट प्लेयर्स सीमेंट प्लेयर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, मगर रेट जाने से भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग सीरियस है लेने के लिए। तो बेसिकली अगर ये जो भी एग्रो वेस्ट को अगर प्रॉपरली बायोफ्यूल में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एनटीपीसी को ही पहले पहल करनी पड़ेगी। तो आप लोग सही कॉस्टिंग अगर हम प्राइवेट प्लेयर लोग के साथ बैठ के देख लीजिए, और उस हिसाब से जो फिजिबल कॉस्ट हो उसको आगे बढ़ा के जल्दी से प्रोसेस आगे बढ़े, तो वही सबसे बेस्ट तरीका होगा मुझे लगता है। और एक्चुअल में रिजल्ट ओरिएंटेड बात वहीं पर आएगी कि क्या किससे बनाना है पैलेट्स, वो हमको सब पता है, सारे फैक्ट्री वालों को पता है, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताने वाला। आप 100% मान के रखिए। आ रहे हैं, वेदांता वाले ने भी फ्लोट किया है।
सर तो जी बस वही तो, सोलर जब गुजरात में मोदी जी ने आगे बढ़ाया तो उन्होंने 20 रुपए में खरीद के, भले ही सरकार का नुकसान हुआ मगर चालू करवाया, मगर यह इसमें चालू ही नहीं हो रहा है सर। हम्म, जी हम्म, 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 जी थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली जो आज का 1 डे प्रोग्राम था हम लोगों को, नेशनल मिशन NTPC NPTI की तरफ से जो एक कॉमनली हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। इस प्रोग्राम में जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसको मार्केट में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इसमें काफ़ी अलग अलग लेवल का अलग अलग प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास मिस्टर योगेश जी आए हैं। योगेश जी ने क्लियर कंसेप्ट दिए कि किस तरीके से हमारे पास मशीन है और मशीन का किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करने के बाद कैसा उसमें प्रॉब्लम आएगा और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो जैसा कि मैंने इसमें देखा, इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और सबसे मेन है इसमें सो है क्या कि जो हमारे पास बायोमास है, बायोमास अलग अलग तरीके से यूज में आ सकता है। तो पहला है बायोमास, दूसरा क्या है पैलेट मैन्युफैक्चरर, जो पैलेट मैन्युफैक्चरर में किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में 70% की फार्मर हैं, 70% किसान हैं और जो कि बायोमास से रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास पैलेट मैन्युफैक्चरर में मैंने यहाँ पर जो नागपुर के मेन हैं कटारिया जी, मैंने इनको भी लेकर आया था और इन्होंने काफ़ी डिस्कशन किए। और इसके बाद किस तरीके से उस मशीन को यूज कर हम लोग पैलेट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मशीनरी के लिए मेरे पास योगेश जी आए थे और मिस्टर अनिल जी भी आए हैं। तो अनिल जी और योगेश जी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को डिस्कशन किए कि किस तरह का मशीन होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, क्या उसका कैपेसिटी है, क्या उसका कॉस्ट है और किस तरीके से उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। सेकेंड फेज ये हो गया। थर्ड फेज में कटारिया जी ने भी जैसा कि और हमारे शुक्ला जी के साथ सर जो आए हुए हैं
इन लोगों ने भी डिस्कशन किए कि उसका क्या प्रोसेस है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली मैंने ये देखा कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है और गवर्नमेंट उसके ऊपर काफ़ी पैसे का खर्च भी करती है और उसका हम लोग यूज भी करते हैं, लेकिन तो प्रॉपर डायरेक्शन में यूज नहीं हो पाता है। जैसे कि पहले मैंने काफ़ी दिनों तक वर्क किया था और देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अभी भी मार्केट में काफ़ी ये रन कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास थर्मल से रिलेटेड जो हम लोग पावर का जनरेशन कर रहे हैं, अभी एट टाइम आज का स्थिति है कि 308 गीगावाट पावर का जनरेशन बाय यूजिंग द कोल हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरीके से देखा जाए तो अभी हमारे पास 13 ईयर प्लान है। इस प्लान के अंदर हमारे पास रिन्यूएबल बेस जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कि सोलर और विंड से रिलेटेड, इसका भी टारगेट 100 गीगावाट का है। हम लोग इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे और शायद हम लोग कर चुके भी हैं। अब नेक्स्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये बायोमास से रिलेटेड है। अब ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। देखिए ये तीनों अलग अलग 3 तरह का प्रोजेक्ट हो गया। एक थर्मल का प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी दैट मीन्स की सोलर से प्रोजेक्ट हो गया, ये थर्ड प्रोजेक्ट हो गया बायोमास। अगर ये तीनों प्रोजेक्ट को हम लोग ठीक अच्छे तरीके से करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहीं कहीं पे स्टडी किया है और कहीं कहीं देखा है कि जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और जो ये बायोमास जो कि हम लोग प्रायः इसको मिस यूज कर देते हैं, यानी कि प्रायः जितने भी होते हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में इसको पराली बोलते हैं, बिहार यूपी में इसको हम लोग पुआल बोलते हैं। ये दोनों को यूज क्या करते हैं कि यूज करने के बाद इसको हम लोग जला देते हैं। जलाने से एक तो CO2 मतलब इन्वायरमेंट में भी आ जाता है और काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम लोग इसको यूज करेंगे और अगर यूज करना स्टार्ट ही कर देंगे तो कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे पास कटारिया जी यूज कर रहे हैं उस लेवल पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच इसमें से 1 इंच भी मिस यूज ना हो। अगर 1 इंच को भी हम लोग मिस यूज नहीं करेंगे तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के लिए हमको कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं पर है। हमारे पास योगेश जी भी आए हुए हैं, अनिल जी भी आए हुए हैं, जो कि ईजी मशीनरी का सप्लाई करेंगे। हम लोग स्मॉल स्केल पर ही वर्क करेंगे और स्मॉल स्केल से ही इसको स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे स्केल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर कटारिया जी हैं जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो कॉटन टेक्नोलॉजी से हमारे पास सर लोग आए हुए हैं और शुक्ला जी आए हुए हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर अगर किसी भी तरह का मेजर प्रॉब्लम आता है तो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिस्टर अमित अग्रवाल जी आए हुए हैं, जो कि केमिकल से रिलेटेड केमिकली कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से, मेरा ये वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में यही टारगेट था कि तीनों इस फील्ड में जो भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब एक न्यू मैन्युफैक्चरर को जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों फेज दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए नागपुर में जितने भी अच्छे या तो मैन्युफैक्चरर हो या मशीनरी बनाने वाले हो या फिर टेक्निकली जो स्ट्रांग हो, उनको यहाँ पर प्रेजेंट करें। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से मेरा जो टारगेट था मैंने उसको पूरा करने की कोशिश किया। हो सकता है कहीं कहीं पर भी बाई मिस्टेक हो भी गया हो, तो उसको अगले प्रोजेक्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे तरफ से ये आज का सेमिनार ये कंप्लीट हो रहा है। और जैसा कि आप लोग मेरे पास आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग आए, और आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और सुशील जी, मालवीय जी, कटारिया जी, अमित जी, और इसके अलावा योगेश सर और अनिल सर, ये हमारे पास एज ए गेस्ट रहे, और बाकी जितने भी हैं वो सभी मेरे लिए चीफ गेस्ट हैं। तो कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग, अगर मैं कभी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं तो आप लोग जरूर उसमें प्रेजेंट रहिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और इस सबसे बड़ी चीज बात यह है कि जिस दिन मैंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, उसी दिन मेरे पास सबसे पहला कॉल आया था ईशान सर का। थैंक यू सर, आपने मुझको सबसे फर्स्ट कॉल किए थे। थैंक यू सर।